morning students. So बच्चे we completed chemical bonding, ठीक है, and जो chemical bonding ਦਾ chapter है उसका जो कल टेस्ट होया सी बच्चे out of 25 the highest score went to ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 18 ਸੀ, I think one student scored 20, so maximum marks were 20, ठीक है ना. So इसका मैं रीटेस्ट लूंगा थोड़ा, MCQs based retest will be there, ठीक है. उसके लिए again you have to revise everything, ठीक है ना. No doubt yesterday's test was a bit tough, है ना, but ऐदा भी नहीं कि उस ਇੰਨੇ ਟੇਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਦੇ ਵਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵੇਬਲ. ਸੋ ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਤਾਂ योर ਰੀਟੈਸਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ. ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ MCQs ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ. 25 ਮਾਰਕਸ, ਸੌਰੀ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ, ठीक है ना. एंड आई होप कि उस टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ everybody should go above 20, ठीक है ना. एटलीस्ट 20 मार्क्स ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਬੱਚੇ. एंड ऑफ कोर्स some students मैं देखना चाहना जिन्हां ਦੇ 25 out of 25 ਹੋਣਗੇ, ठीक है ना. so chemical bonding, as I told you कि it was a bulky chapter, ठीक है. अच्छा, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਜੋ MCQs ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. I know कि अगर 25 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ above 15 ਹੈ, that was above par, मतलब that can be counted as a good score, but definitely not a very good score, ठीक है ना. and I want all of you to score very good score, ठीक है ना. so as I told you कि chemical bonding and atomic structure ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ very bulky chapters complete ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. now today we shall start off with ਇੱਕ small chapter, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਬਾਈ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, S ਬਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦ P ਬਲੌਕ ਜੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਫ ਆਫ ਦ P ਬਲੌਕ ਇਜ਼ ਇਨ 10+2. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਥੀਸ ਆਰ ਸਮਾਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਚੈਪਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ. So today we shall start off बच्चे with hydrogen, ठीक है. As we all know कि hydrogen is the first element of your periodic table. Atomic number 1, atomic mass number 1, ठीक है. It has one proton in its nucleus, no neutrons and just one electron in its first shell. अपन को सब नु पता है, ठीक है. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ the position of hydrogen is anomalous, ਠੀਕ ਹੈ. the reason being कि we can place hydrogen in the alkali metals as well as with the halogens. देखो कितना कह रहे हैं मैं. so this is any one period: lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. सो बच्चे ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. so hydrogen is placed here in the periodic table, but it can definitely be placed here also, ठीक है. so ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? क्योंकि इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है that enters into the s subshell 1s1, ठीक है. another reason can also be said कि इससे भी outer shell च एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हां सारियां दे outer shell च भी they have one electron each. so this is the reason why we have placed hydrogen there, but at the same time we can also say कि hydrogen can also be placed in halogens, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेल च होने करके it needs one extra electron, one more electron to complete its shell, ठीक है ना. फिर इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा.
and at the same time जो halogens ਹੁੰਦੇ ਨੇ they also have 7 electrons in their outermost shell and they also need just 1 electron to complete their outermost shell. You getting a point? So अपन alkali metals ਦੇ ਵਿੱਚ mainly ਉਸ ਨੂੰ अच्छा जी एक और very important point which gives hydrogen a position here is कि alkali metals are metals and hydrogen is a non-metal. ठीक है ना? जबकि fluorine, chlorine, bromine, iodine, of course they all are non-metals. ठीक है ना? So hydrogen ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ place ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ due to its electronic configuration 1s1. Since the electron enters into the s subshell ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ s block ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. Otherwise it can also be placed along with the halogens. ਤੇ ਆਪਣਾ first topic ਇਸ chapter ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ hydrogen ਹੈ it is called a wrong element. The hydrogen it is also known as a wrong element, है ना? Why we call it a wrong element? Because देखो wrong मतलब कि like जो किसी ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੈਨ ਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 100% ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ So this is our today's topic. ठीक है, आप पहला पढ़ांगे कि how does hydrogen, ठीक है, what are the similarities between hydrogen and alkali metals, and at the same time how does it differ from alkali metals. We'll also study कि hydrogen कितना इनका दिनाल मिलता है, what are the similarities between hydrogen and halogens, and at the same time how does hydrogen differ from the halogens. You getting a point? So all these are to be discussed today. ठीक है ना? इन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ then we'll move on to the next topic. So basically this forms a part of this topic forms an introduction to hydrogen कि how does hydrogen differ from alkali metals and halogens and what are the similarities of hydrogen with alkali metals and halogens. So let's start off with it. Start off with similarities with alkali metals कि hydrogen और alkali metals ਦੇ ਵਿੱਚ similarities ਕੀ ਹੈ ਨਾ? So similarities with alkali metals. Fine. So what are the similarities with alkali metals? Number 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइन हाइड्रोजन ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1s1 एल्कली मेटल्स ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ns1 फाइन ऑफ कोर्स सब ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜੋ s ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फाइन सो फर्स्ट सिमिलरिटी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ केटायंस ठीक है एल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करके दे कैन फॉर्म केटायंस हाइड्रोजन भी बच्चे कैन फॉर्म इट्स केटायन H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है नंबर 3 ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर जो अपने रिडॉक्स रिएक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ NaCl ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Cl is negative sodium is +1 अगर मेरे पास पोटेशियम ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन इज -2 पोटेशियम इज +1 सो एल्कली मेटल्स दी ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स कितनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ +1 ਤੇ हाइड्रोजन आल्सो शोज +1 इन इट्स कंपाउंड्स ठीक है हां अगर मैं यही डिफरेंस लिखना होवे तो हाइड्रोजन कल्ली +1 नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹ -1 भी ਹੁੰਦੀ है बट यस ਉਹ एल्कली मेटल्स ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करदी है बच्चे ठीक है ना क्लियर फोर्थ पॉइंट मैं थर्ड पॉइंट दे विचों ही कैरी कर रहे हैं एग्जांपल्स दे विचों सो फोर्थ पॉइंट इज बोथ हैव
affinity for नॉन मेटल्स। सो बच्चे एल्कली मेटल्स भी नॉन मेटल्स के नाल इजीली मिलते हैं, है ना। NaCl, KCl, K2O, Na2O, Li2O, जितने मर्जी कंपाउंड्स बना लो, है ना। Li3N, फाइन। सिमिलरली हाइड्रोजन भी HCl, HBr, H2O, NH3, fine. So it has high affinity for non-metals, just like alkali metals. Non-metals के नाल मिलके ये easily compounds form कर दिए बच्चे, ठीक है ना? Clear? So these are some of the similarities of hydrogen with alkali metals. जिथे-जिथे वो alkali metals के नाल मेल खा रही है, ठीक है? Now we shall do some differences, dissimilarities. So alkali metals से hydrogen कितने different है बच्चे, ठीक है ना? So how does hydrogen differ from alkali metals? So now we shall do dissimilarities. So dissimilarities with alkali metals. Now, number one. So ਜਿਹੜੀ first and foremost dissimilarity है बच्चे, वो तो है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सो ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है ना। एल्कली मेटल्स ऑफ कोर्स वो पूरे पीरियोडिक टेबल सब तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स ने, है ना। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जबकि हाइड्रोजन का बच्चे है ही नॉन मेटल, है ना। उन्होंने तो अपन मेटल्स की गिनती च नहीं करते। सो द बिगेस्ट डिफरेंस। नंबर 2, एटॉमिसिटी। सो एल्कली मेटल्स बच्चे मेटल्स है, सो तो मोनो एटॉमिक मिलेंगे अपन, जबकि हाइड्रोजन किमें मिलती है अपन डायटॉमिक H2, ठीक है ना। मेटल्स आर ऑलवेज मोनो एटॉमिक। मेटल्स कदे अपन Li2 Na3 ऐदा नहीं मिलेंगे, दे आर ऑलवेज मोनो एटॉमिक। जबकि हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके किमें एग्जिस्ट करती है H2। सो एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक एटम्स, जबकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। फाइन, ठीक है। थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बच्चे हुण देखो बच्चे, हुण ध्यान नाल सुनो ये पॉइंट। ਆਪਾਂ जो सिमिलैरिटीज च कीता सी, ਆਪਾਂ उसे ਨੂੰ एक डिससिमिलैरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, बना सकती है ना। सिमिलरली एल्कली मेटल्स भी बना सकते हैं, लिथियम, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, फाइन। सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड ते ਆਪਾਂ लास्ट ले लेने हैं सीजियम। ਆਪਾਂ दो एक्सट्रीम्स ले रहे, फाइन, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਕੈਟਾਇਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, लिथियम ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 512 ਕਿਲੋਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। while moving down in the periodic table आयनाइजेशन एनर्जी की हो जाती है डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल है ना बच्चे, बेसिकली इनऑर्गेनिक इज नथिंग बट पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। आप बेसिकली पीरियोडिक टेबल नु डिटेल च पढ़ना है, ठीक है ना। सो लिथियम तो सोडियम दी घट होएगी, सोडियम तो पोटेशियम, पोटेशियम तो रुबीडियम एंड सीजियम विल बी मिनिमम 375 किलोजूल्स पर मोल। यानी कि एल्कली मेटल्स दी जिहड़ी आयनाइजेशन एनर्जी है ओदी रेंज की है 375 तो 512, जबकि हाइड्रोजन दी हुंदी है बच्चे 1312 किलोजूल्स पर मोल। सो बहुत ज्यादा, यू गेटिंग अ पॉइंट। सो हाइड्रोजन दी आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स दे मुकाबले बहुत ज्यादा है। अच्छा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਇਹ, यानी कि इसकी ਜਿਹੜੀ आयनाइजेशन एनर्जी है वो हेलोजेंस ਨੂੰ मैच करती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ਨੂੰ। सो एल्कली मेटल्स तो इट इज डिफरेंट। क्लियर।
सो बेशक इट कैन फॉर्म केटायंस लाइक एल्कली मेटल्स। सो देखो अगर आपने सिमिलैरिटी लिखनी है आप कह देंगे इट कैन फॉर्म केटायंस जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। अगर डिसिमिलैरिटी लिखनी है तो आप कह देंगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जेडी की रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म द केटायंस इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू द एल्कली मेटल्स। सो we'll move on to the next difference now. So which is the fourth difference now is type of compounds. So which is जो alkali metals होते हैं है ना, alkali metals they mainly form ionic compounds. मेनली नहीं बल्कि इनफैक्ट दे फॉर्म ओनली आयोनिक कंपाउंड्स क्योंकि दे आर मेटल्स। मेटल्स को एक कोई ऑप्शन होती है कि दे कैन कंबाइन विद द नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, जबकि हाइड्रोजन मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन है वो तो मेनली बच्चे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाओगे जिदा कि HCl वाटर। हाइड्रोजन आयोनिक कंपाउंड्स कदों बनाती है जो एल्कली मेटल्स वगैरह के नाल ही मिलती है लाइक सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो एल्कली मेटल्स दे कंपाउंड्स आर आयोनिक जबकि हाइड्रोजन दे कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ठीक है, लास्ट। सो लास्ट डिफरेंस बिटवीन एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो बच्चे देखो अपने की क्या सी जेडे मेटल्स होंगे ने उन्हां दे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद है कि नहीं? सो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या एंड सो ऑन, दे ऑल आर बेसिक। फाइन। जबकि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड केड़ा हुंदा है? वी नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड वाटर इज न्यूट्रल बच्चे। ठीक है ना? सो एल्कली मेटल्स बीइंग मेटल्स दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जबकि हाइड्रोजन द ऑक्साइड इज वाटर व्हिच इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एंड नाउ वी शैल मूव ऑन टू द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस। ठीक है ना? सो So which is similarities of hydrogen with halogens now. So fluorine, chlorine, bromine, iodine ਦੇ ਨਾਲ हाइड्रोजन ਦੀਆਂ ਕੀ similarities ਹਨ ਜੀ? ठीक है ना? So again number 1 will be electronic configuration. Electronic configuration. ठीक है, सो एल्कली मेटल्स ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ they both have one electron in their outermost shell, 1s1 ns1 है ना। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ they both need one electron each to complete their shell। ठीक है ना, so they both need one electron each to complete their shell या to gain a stable electronic configuration. Fine. Number 2, both are diatomic बच्चे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला की होता है H2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिंस उन्होंने कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो स्टेबल बन जाते हैं। सो इन्हां सब दे विच भी सिंगल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन दे विच भी सिंगल बॉन्ड ही है बच्चे। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दे ऑल आर डायटोमिक एंड दे कंटेन वन कोवेलेंट बॉन्ड, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। डन? ठीक है।
थर्ड, सो आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किवें सिमिलर है बच्चे, हाइड्रोजन ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। they both are diatomic, hydrogen H2, fluorine F2, diatomic भी है and ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ single bonds है, ठीक है। third, both are non metals बचे, है ना, जो मेजर सिमिलैरिटी है। हाइड्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल, जबकि हेलोजेंस दे आर आल्सो नॉन मेटल्स, फाइन। फोर्थ, मेनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, दूसरे नॉन मेटल्स दे नाल या आपस च मिलके कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। हाँ, मेटल्स दे नाल मिलके आयोनिक भी बना सकते हैं, ठीक है। सो भी सिमिलैरिटी है इन्हां दे विच, ठीक है ना। फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद अदर नॉन मेटल्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स, द सेम ही विद हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, हुन जो आपने डिफरेंस किया सी एल्कली मेटल्स नालों, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पॉइंट याद है ना। इधर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम कितनी सी 512, ते आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम कितनी सी बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम कितनी सी 375, ते जबकि हाइड्रोजन की कितनी सी 1312, मतलब इन्हें तो बहुत ज्यादा, ठीक है। हुन मैं वही आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं विद हेलोजेंस, ठीक है, कि हेलोजेंस दे नाल कितनी है। सो फ्लोरीन दी सब तो ज्यादा होएगी, आयोडीन दी सब तो घट होएगी। फ्लोरीन दी हुंदी है बच्चे 1681 किलोजूल्स पर मोल, आयोडीन हुंदी है 1009 किलोजूल्स पर मोल, एंड वी नो कि हाइड्रोजन की कितनी है 1312 किलोजूल्स पर मोल। सो अपन क्लियरली दिख रहा है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लाइज बिटवीन फ्लोरीन एंड आयोडीन। यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। सो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अगेन इंडिकेट करती है कि इनकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू हेलोजेंस, नॉट टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की रेंज तो बच्चे बहुत बाहर है, जबकि हेलोजेंस की रेंज के विच चले आ रही है आयनाइजेशन एनर्जी। गेटिंग अ पॉइंट। सो दीज आर योर सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस। सो फर्स्ट सिमिलैरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डायटोमिक एंड मोरओवर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड, दोनों ही नॉन मेटल्स है बच्चे। फोर्थ, अगर हाइड्रोजन या हेलोजेंस दूसरे नॉन मेटल्स नाल मिलते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, अगर मेटल्स नाल मिलते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाइड्रोजन दी इट लाइज बिटवीन दोज ऑफ हेलोजेंस। फ्लोरीन दी हाईएस्ट है 1681, नीचे जाते वक्त डिक्रीज करूंगी इन द ग्रुप। आयोडीन दी लोएस्ट 1009, सो इसकी आयोडीन तो ज्यादा है, फ्लोरीन तो घट है। यू गेटिंग अ पॉइंट। सो these are your similarities. Now we shall move on कि हाइड्रोजन दिया हेलोजेंस तो की डिससिमिलैरिटीज है, जिन्हें अपन एल्कली मेटल्स तो डिस्कस किया है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम हेलोजेंस। सो नाउ बच्चे वी शैल सम अप कि हाउ डज हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम द हेलोजेंस, ठीक है ना। सो डिससिमिलैरिटीज विद हेलोजेंस। सो नंबर 1, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगेन जिदा आप एल्कली मेटल्स तो कीता सी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो बच्चे हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, सो अगर मैं उन्हां दे ऑक्साइड्स दी गल करा, ठीक है, मतलब क्लोरीन हैज मेनी ऑक्साइड्स, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। चलो we are not bothered about कि कितने ऑक्साइड्स है, मुद्दा is कि ये जितने भी ऑक्साइड्स है they all are acidic in nature, ठीक है। ये जितने भी ऑक्साइड्स है बच्चे they all are acidic in nature,
जबकि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड अगेन which one? Water. It is neutral in nature. हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की ਹੁੰਦਾ बच्चे न्यूट्रल इन नेचर. फाइन. नंबर 2, presence of lone pairs of electrons in the molecule. So presence of lone pairs of electrons in the molecule. So बच्चे देखो हाइड्रोजन ऐदा दा मॉलिक्यूल है. फाइन. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन सी दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एंड H2 is formed. जबकि हेलोजन्स दे आउटर मोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ਜਦੋਂ ਉਹ F2 Cl2 वगैरह बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके they will have 3 lone pairs of electrons. So that is why we say कि हाइड्रोजन दे कोल बेशक हाइड्रोजन भी H2 है एंड हेलोजन्स भी डायटोमिक है, बट ਇਹਦੇ ਕੋਲ बॉन्ड बनाने तो बाद कोई लोन पेयर नहीं ਹੁੰਦਾ, जबकि हेलोजन्स दे हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. नाउ थर्ड, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो अपन ये तो कहता कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है, ते हेलोजन्स भी नॉन मेटल्स है, बट उन्हां दे नॉन मेटैलिक करैक्टर ते हाइड्रोजन दे नॉन मेटैलिक करैक्टर में बहुत फर्क है. बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट हाइड्रोजन इज अ वेरी वीक नॉन मेटल, जबकि हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. फ्लोरीन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे 4 हुंदी है. क्लोरीन हैज 3 जबकि हाइड्रोजन हैज 2.1. ठीक है ना. ब्रोमीन हुंदी है 2.8, आयोडीन हुंदी है 2.7, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली 2.1. सो बेशक बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हेलोजन्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटालिक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटालिक है, बट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसदे विच बहुत ज्यादा डिफरेंस है. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दीज आर योर डिफरेंसेस between hydrogen and halogens, and this completes your first topic ki how is hydrogen similar to alkali metals ya halogens, and what are the differences of hydrogen, how does it differ from alkali metals and halogens. Fine. Now we shall begin our next topic, types of hydrogen. So write down types of hydrogen. बच्चे आई मस्ट टेल यू कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके विच बहुत ज्यादा लर्निंग पार्ट होता है. ठीक है ना. अंडरस्टैंडिंग भी है बट नाल नाल लर्निंग भी है, इसलिए इट नीड्स मोर हार्ड वर्क एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री. सो चंगी तरह पढ़ते रहियो इसको. सो हेडिंग इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. डन. सो first type, it is called ortho and para hydrogen. Very important. Ortho and para hydrogen. Fine. Now go back to orbital concept. Go back to orbital concept in chemical bonding. अगर समझो याद हो गए अपन ने की कीता सी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना बनेगा. बच्चे मैं थ्योरी बात दस दें, थ्योरी तुसी नोट्स चो भी कर सकते हो, बट पहला एक बार समझ लो. ठीक है. अपन ने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कीता सीगा कि हाइड्रोजन कितना बनती है. एक हाइड्रोजन एटम आएगा विद बॉन्डिंग विद क्लॉकवाइज स्पिन. ठीक है. और दूसरा हाइड्रोजन एटम विद एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. दोनों ओवरलैप करेंगे और मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. क्लियर? यानी कि मैं स्पेसिफाई करता कि जो मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन विल बी एंटी क्लॉकवाइज. यू गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? ठीक है. बट
ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆਲਸੋ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, अगेन द न्यूक्लियस, अगर एक दा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है दूसरे दा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, फाइन। हुण बच्चे ध्यान नाल सुनो, इलेक्ट्रॉन्स दी स्पिन तो आपने मेंशन करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दी स्पिन अगर दोनों च क्लॉकवाइज या दोनों च एंटी क्लॉकवाइज होंदी फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनना सी, है ना। मॉलिक्यूल ताइयों बनेगा अगर एक च स्पिन क्लॉकवाइज होएगी एक च एंटी क्लॉकवाइज होएगी। बट ये ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਆਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, and अगर opposite direction च होवे तब we call it para hydrogen. So easy, you getting a point? So ortho and para hydrogen में किधे बेस पे डिसाइड करते हैं? Based upon the nuclear spins of the two hydrogen atoms. So first point, they are also known as nuclear spin isomers of each other. They are also known as nuclear spin isomers of each other. Nuclear spin isomers of each other. Next दोनों विचों केड़ा ज्यादा स्टेबल होएगा? So ortho hydrogen is more stable than para hydrogen. Ortho hydrogen is more stable than para hydrogen. Fine. I think जितनी भी हाइड्रोजन होंगी है उसको 78% तो बच्चे ऑर्थो ही होता है, ठीक है ना। बाकी एग्जैक्ट फिगर तुसी कॉपीज चो चेक कर सकते हो। नाउ अगर तुसी पैरा दी अमाउंट इंक्रीज करनी है, सो देखो जी ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है तो ऑफ कोर्स जितनी भी अपन हाइड्रोजन मिलती है ਉਹਦੇ ਚ ऑर्थो दी क्वांटिटी ज्यादा होती है, पैरा दी क्वांटिटी घट होती है। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट पैरा तुसी की कर सकते हो, पैरा increases with decrease in temperature. ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ that will get converted into para hydrogen, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ that will get converted into para hydrogen ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ at -253 डिग्री सेंटीग्रेड, सो एने लो टेम्परेचर पे जाके you will have 100% पैरा हाइड्रोजन। सो देखो सारी दी सारी ऑर्थो है ਜਿਹੜੀ ਉਹ पैरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। डन। हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिदा देखो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का अगर तुम इंक्रीज करो तो पैरा ऑर्थो चेंज नहीं होगी। मेरी गल समझ आई कि नहीं? अगर आप रूम टेम्परेचर तो डिक्रीज करी जावांगे तो ऑर्थो विल गेट कन्वर्टेड इनटू पैरा, बट अगर तुसी टेम्परेचर अगर तुसी कहो कि सर अगर डिक्रीज करे तो ऑर्थो तो पैरा बन रही है तो इंक्रीज करे तो पैरा तो ऑर्थो बनूगी, बिल्कुल। अगर -253 तो रूम टेम्परेचर लेके आओगे दोबारा ऑर्थो विल गेट कन्वर्टेड इनटू पैरा, बट अगर तुसी नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो इंक्रीज करोगे तो पैरा दा अमाउंट ऑर्थो दे विच कन्वर्ट नहीं होएगा, ऑर्थो जिन्नी हैगी उन्नी ही रहूगी। सो तुसी रूम टेम्परेचर तो डिक्रीज करके ऑर्थो ਨੂੰ पैरा ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, बट रूम टेम्परेचर तो इंक्रीज करके पैरा ਨੂੰ ऑर्थो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर योर फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। और अगेन आई रिपीट कि दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ? अगर न्यूक्लियर स्पिन सेम साइड ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ऑर्थो, ऑपोजिट है ਤਾਂ पैरा। ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा, सो अपने को ज्यादा मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्थो मिलती है। हाउएवर अगर ਤੁਸੀਂ ऑर्थो ਨੂੰ पैरा ਚ कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेम्परेचर ਨੂੰ डिक्रीज कर दो,
-253 ਤੇ ਜਾके ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ दैट डजंट मीन ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਰਥੋ। ਆਰਥੋ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਨ। So now we shall move on to the next form of hydrogen. So the next type of hydrogen, we call it atomic hydrogen. ठीक है, कुछ भी नहीं है। So जो वे नेम बोल रहे हैं, so atomic hydrogen means जेडी hydrogen in the form of atoms मिलती है अपन, the hydrogen that is present in the form of एटम्स, है ना। वो कितना मिलेगी अपन ਨੂੰ? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਬੌਂਡ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 433 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ 433 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟम्स। फाइन, these are called atomic hydrogens। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ H2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ H2 ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 433 ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 433 ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਐਟਮਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? अगर ये दोनों कंबाइन करके दोबारा H2 बनाएंगे तो 433 रिलीज तो होएगी ना, और रिलीज होकर दोबारा फिर होल मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी, ठीक है। नाउ एक चीज और याद रखनी है बच्चे, जिहड़ी एनर्जी आपां प्रोवाइड करते हैं केमिस्ट्री दे विच, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ या तो हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यू प्रोवाइड अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या तो तुसी हीट करते हो या तुसी एक वेरी हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिंदे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आर्क्स दे नाल। सो एनर्जी ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਇਹ ਉਹਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਫਾਈਨ, 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, थर्ड, जिसमें आप कहने हैं बच्चे एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, सो बच्चे एक्टिव हाइड्रोजन इज क्वाइट सिमिलर टू एटॉमिक हाइड्रोजन, बस दोनों के बीच डिफरेंस की है कि इट हैज ग्रेटर एनर्जी। सो ज्यादा एनर्जी होने करके एक उस तो भी ज्यादा रिएक्टिव है। वेरी हाईली रिएक्टिव, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ? 0.03 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਫਾਈਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟॉमिक ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟॉमिक ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ so बच्चे देखो, the next type of hydrogen is called nascent hydrogen। इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं H एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। नाउ नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट इट मींस
फ्रेश। बेसिकली नेसेंट एक बायोलॉजिकल वर्ड है बच्चे। नेसेंट वर्ड पता कित्थों आंदा है? एक नवे जन्मे बच्चे तो, नवजात शिशु जिन्हों आप हिंदी च बोलते हैं, अ न्यू बॉर्न बेबी, है ना। सो नेसेंट वर्ड इज फ्रेश, ठीक है। हुण इहदा मतलब की है? द हाइड्रोजन that is produced in situ, the hydrogen that is produced in situ। in situ बायो वाले बच्चे जानते होंगे, जेडे नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उन्होंने मैं दसदा कि in situ का मतलब की होता है। the hydrogen that is produced in situ in contact with the substance to be reduced। सो बच्चे ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਨ ਸਿਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ मेरी गल सुनो ध्यान नाल बच्चे, गल सुनो। देखो सपोज मैं आ रिएक्शन कैरी करनी है विद हाइड्रोजन। देखो FeCl3 प्लस H2, ठीक है, 2 FeCl2 प्लस 2 HCl आउट। सो मैं आयरन नो +3 तो +2 रिड्यूस करता। सो हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हले रिएक्शन ना लिखियो, मैं इस करेक्शन करूंगा। हुण देखो बच्चे, मैं इसको रेडीमेड हाइड्रोजन नहीं देनी, ठीक है। मैं की करूंगा, देखो मैं एक टेस्ट ट्यूब लई, फाइन, इधर देखो उस टेस्ट ट्यूब च मैं की कीता, फर्स्ट नंबर ते मैं FeCl3 पाता। हुण मैं उस H2 नहीं पास करूंगा, हुण मैं उस पाता जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये मैं क्यों पाया? क्योंकि इन्हां दोनों दे विच रिएक्शन हुई, की बन गया ZnSO4 प्लस जेड़ा H2 बाहर है वो निकल गया इन द फॉर्म ऑफ 2H। जेड़ा ये 2H है उसने मेरे FeCl3 के ऊपर अटैक करता। FeCl3 2 molecules plus 2H gives me FeCl2 plus 2HCl out। ਇਹਦਾ मतलब की कहना चाह रहे हैं मैं कि मैं FeCl3 ਨੂੰ रिड्यूस करना सी, ठीक है। तो मैं रेडीमेड हाइड्रोजन पाने की बजाय मैं की कीता, मैं बिल्कुल फ्रेश हाइड्रोजन प्रिपेयर की है एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। इन्हां दोनों ने रिएक्ट करके मैंने हाइड्रोजन दी, हाइड्रोजन ने FeCl3 के ऊपर अटैक किया तो उसको रिड्यूस करता। दिस इज व्हाट यू मीन बाय फ्रेश हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, जिहड़ी कि मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट प्रिपेयर की है, ठीक है ना। अगेन इसकी एडवांटेज की है सेम, इट इज मोर एक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। सो जो रिएक्शंस नॉर्मल H2 नहीं कर सकती वो रिएक्शंस नेसेंट हाइड्रोजन कर सकती है बच्चे। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय नेसेंट हाइड्रोजन। अपने को सिर्फ एक फॉर्म रेडी है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, वो अपन कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चे जो लास्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अपन ने पढ़नी है दैट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड और interstitial hydrogen। Now बच्चे what do you mean by interstices? Interstices की होंदी है? दो ऑब्जेक्ट्स दे विचकार खाली स्पेस। देखो जिवें आ फिंगर्स में जिन्ना मर्जी क्लोजली है ना ਆਪਾਂ ਫਿਸਟ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਲਈਏ, बट आ खाली स्पेसेस देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਗੀਆਂ। These are called interstices, ठीक है ना। ते कोई भी छोटियां चीज़ां वो इस इंटरस्टिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਸਕਦੀਆਂ है ना। दैट इज व्हाट यू मीन बाय ऑक्लूजन। ऑक्लूडेड मींस खुब्बिया हुआ है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेन है
ठीक है। अगर मैं आप पेन लवां तो मैं जिन्नी मर्जी इसनू पिंच कर लवां, इट कैन ईजिली गो इनटू इट, ठीक है ना। सो देखो ये होल्ड हो गया इत्थे, यू गेटिंग अ पॉइंट। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय ऑक्लूजन या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन। ये किवें हुंदी है, देखो जो अपने कोल लार्ज साइज्ड मैटल एटम्स है, देखो खास तौर पे किहड़े, चलो मैं तुहानू एग्जांपल दे नाल ही दसदा। तुसी +1 दे विच आ रिएक्शन कीती होनी है, सॉरी 10th दे विच ये रिएक्शन कीती होनी है। चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हाँ जी, कुछ बच्चों को तो याद आएगा, ठीक है ना। रिसेंटली सोडा रिजल्ट भी आया, ठीक है। चलो टेकिंग अ ब्रेक, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट फॉर योर रिजल्ट्स, ठीक है बच्चे। सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। एवरीबडी हैज स्कोर्ड गुड, ठीक है। जिन्हां दे थोड़े बहुत घट भी गए तो नो नीड टू फील इट, ठीक है ना। अगे मेहनत करो बच्चे, ठीक है ना। ट्राई टू स्कोर एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है ना, कि इन्हां 2 सालां अगर मेहनत करोगे बच्चे तो 60% वाला बच्चा 90 तक भी जा सकता है, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो 80-90s वाले नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सो जिन्ना हुण तुसी हार्ड वर्क करोगे उसे दे ऊपर डिपेंड करेगा कि इन व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस यू एंटर, ठीक है। एंड वंस यू एंटर दोज कॉलेजेस योर फ्यूचर गेट्स डिसाइडेड, ठीक है ना। यू गेटिंग अ पॉइंट। जिन्ने चंगे कॉलेज चले जाओगे बच्चे उन्नी चंगी पोजीशन हासिल कर लोगे लाइफ दे विच, ठीक है ना। मतलब आई डोंट थिंक सो कि तुसी अपनी लाइफ च कदे सुनिया होएगा कि एक इंजीनियर IITs तो करके या कोई NITs तो करके ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तुसी कदे नहीं सुनिया होएगा कि एक डॉक्टर एम्स तो डॉक्टर बन के, DMC तो डॉक्टर बन के, CMC तो डॉक्टर बन के हुण वो कॉम्पिटिटिवली फर्दर तैयारी कर रहे हैं, MSMD उसका क्लीयर नहीं हो रहा, या मतलब ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਯੂ ਐਂਟਰ ਦ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਇਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵੀ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਸਕੋਰਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਕ ਫॉर इट इन द फ्यूचर क्लासेस। +2 की तैयारी करो बच्चे चंगी तरह, ठीक है ना। +1 तो बेस बिल्डअप करो, +2 चंगी तरह गिव इट अ शॉट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई चंगी तरह तकड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो विद वेरी गुड मार्क्स, गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। एंड देयर आफ्टर योर फ्यूचर विल बी सेफ, ठीक है ना। एंड योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स विल बी प्राउड ऑफ यू, सीधी जी गल है, ठीक है। चलो we'll come back to the topic। ਤੁਸੀਂ 10th ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ we get alkanes, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, what you used to write upon the arrows। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਪੈਲੇਡੀਅਮ। मोस्टली 10th ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਕਲ ਐਟਮਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਦਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਫਿਲ ਥੀਸ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ और occluded hydrogen बच्चे, ठीक है ना। This is called interstitial or occluded hydrogen, and this phenomenon of taking hydrogen into the interstices is known as, ये आप +2 च करांगे, adsorption। It is a D here,
एडसॉर्प्शन AD ਆਪਾਂ commonly absorption भी यूज कर ਦਿੰਦੇ हैं B but absorption ਤੇ adsorption ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ what is the difference between adsorption and absorption is absorption ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ throughout the surface throughout the bulk ਹੋਵੇ अगर सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ that is adsorption मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੌਂਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is absorption B ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰਫ ਸਪੌਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ that is adsorption ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so the hydrogen is adsorbed now देखो इसकी कितनी कैपेसिटी है जो निकल है that can absorb 500 times of its volume of hydrogen so जिन्नी वॉल्यूम तुसी निकल मेटल दी लेती है उस तो 500 गुना ज्यादा हाइड्रोजन वो अपने सरफेस दे ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है उस तो 500 गुना ज्यादा बच्चे ठीक है उस तो 500 गुना ज्यादा ठीक है now this adsorption is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature अगर तुसी इस हाइड्रोजन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹते हो ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੋ ਇਹ उड़ जूगी अगर ठंडा कर दोगे तो बढ़ जूगी या फिर प्रेशर लगा के बढ़ जूगी अगर प्रेशर रिलीज कर दोगे तो निकल जूगी ये गेटिंग अ पॉइंट देखो ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਲॉथ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੌਂਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੜ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ amount of occluded hydrogen is directly proportional to pressure inversely proportional to temperature and again now is the use की है it is again more active than normal hydrogen ठीक है ये वो reactions भी कर सकती है जो normal hydrogen नहीं कर सकती ये गणेगा point similarly जिवें हुणे मैं रिएक्शन लिखी सी एल्कीन वाली ये एल्कीन वाली रिएक्शन च अगर तुसी नॉर्मल H2 पाओगे तो ये रिएक्शन नहीं होएगी ये रिएक्शन सिर्फ ऑक्लूडेड हाइड्रोजन ही कर सकती है सो इट इज मोर एक्टिव देन नॉर्मल H2 गेटिंग अ पॉइंट ठीक है सो दिस इज इट फॉर टुडे ठीक है बच्चे ਆਪਾਂ जनरल इंट्रोडक्शन कर ली कि हाइड्रोजन दे डिफरेंसेस ते सिमिलैरिटीज विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स ਆਪਾਂ ਨੇ कर लिया ठीक है अपने नोट्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp कर चुके हैं नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ गेटिंग अ पॉइंट सो कीप स्टडीिंग कीप रिवाइजिंग थैंक्स अ लॉट बच्चे